Okay, good morning, class. In the previous lecture, we have taken this example and we are talking about converse, inverse, and contrapositive for any conditional statement. So here, the problem is the home team wins whenever it is raining. Now, as I have told you, if P then Q, that is represented as P implies Q. Okay, and this can be written in many forms that we have discussed earlier. So out of that, the one form is Q whenever P. So therefore here the P proposition must be it is raining, and the Q proposition must be the home team wins whenever we want to write the formula as P implies Q. So here I have taken this example in the previous class. So this P implies Q. Therefore, the statement can also be written as if it is raining, then the home team wins. Now, as you know, the converse contrapositive is negation of Q implies negation of P. Therefore, the corresponding sentence will be if the home team does not win, then it is not raining. In the same way, the converse statement is defined to be as Q implies P, and therefore the corresponding sentence will be if the home team wins, then it is raining. In the same way, inverse is defined to be as not P implies not Q. Okay, so therefore, if it is not raining, then the home team does not win. This will be the inverse. Okay, so we have defined that converse is Q implies P, inverse is negation of P implies negation of Q, and the contrapositive is negation of Q implies negation of P for a given sentence P implies Q. Okay, so moving ahead, the next, the fifth one connective that we are using is biconditional or by implication or equivalence connective. Okay, so for this, we are saying how we can combine two propositions which will have the same truth value. That means if P and Q are the two propositions, then the biconditional statement will be represented as P biconditional Q. So this arrow is in both directions. It implies P is necessary as well as sufficient condition for Q. So P biconditional Q, it means P implies Q and Q implies P. And this is read as P if and only if Q. The biconditional statement P biconditional Q is true when P and Q have the same truth values. Okay. If P is true, Q is true, then P biconditional Q is true. If P is false, Q is false, then P biconditional Q is false. लेकिन एक ट्रू और एक फॉल्स होगा तो ये बाइकंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाई इम्प्लीकेशन एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल. देखो जब दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो ट्रू है, एक ट्रू और एक फॉल्स है तो फॉल्स है. ओके, so this is the truth table for this biconditional or equivalence logical connective. Now moving ahead, there are some other ways also to express this P biconditional Q. Here, as I have told you, here P is the necessary and sufficient condition for Q. It can also be written as if P then Q and conversely, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इफ P then Q का कन्वर्स स्टेटमेंट होता है if Q then P. तो if P then Q है और if Q then P है, it means P implies Q as well as Q implies P. Or it can also be written as P if Q, I double F. I double F stands for if and only if. ठीक है, तो this is P if Q. These are the three synonyms that can be used in place of if and only if. Okay. So by that, here we are saying P biconditional Q has the same truth value as P implies Q and Q implies P. अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे और इसका ट्रूथ टेबल कंपेयर करोगे तो दोनों काम में सेम ट्रूथ वैल्यू मिलेगा. और मैंने आपको बताया था कभी भी दो फॉर्मूला के लिए अगर
ट्रूथ वैल्यूज सेम हैं तो वो दोनों फॉर्मूला जो हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाते हैं. ठीक है. So here we are taking some example. Let us say P is the statement. You can take the flight. Q is the statement. You buy a ticket. So tell me, what is the statement for P by conditional Q? Anyone? You can unmute yourself and you can answer. The P sentence is you can buy the you can take the flight, and the Q statement is you buy a ticket. So what is the biconditional statement P biconditional implication? Q. P by implication Q. What is the sentence for this? Sir, if you buy a ticket, then you can take the flight. मैं बाई इम्प्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, आप कंडीशनल स्टेटमेंट बता रहे हो. आई एम आस्किंग फॉर पी बाई कंडीशनल क्यू. ठीक है. If P then Q, sorry, if Q then P. नो नो, अविलास यू आर करेक्ट. यस, एनीवन एल्स? मैंने अभी बताया आपको पिछली स्लाइड पे कि बाई इम्प्लीकेशन को या बाई कंडीशनल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज द वे. आइदर यू कैन यूज इफ एंड ओनली इफ, दिस वन. P if and only if Q. Okay. Or you can use one of these three, that is P necessary and sufficient for Q, if P then Q, and conversely, or you can use P if Q. Okay. So therefore here the corresponding statement will be you can take the flight if and only if you buy a ticket. You can take the flight if and only if you buy a ticket. मैंने आपको बताया बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन को हम इफ एंड ओनली इफ से लिखते हैं. तो दैट्स व्हाई द सेंटेंस विल बी पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. दैट मीन्स इट विल बी यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाई अ टिकट. This can also be written as you can take the flight if I double F होगा यहाँ पे, है ना. तो if you buy a ticket, तो you can write this way, or you can say if you can take flight then you buy a ticket, and conversely. Okay. So these are the different ways to represent P by conditional Q. Yes, Sajal, you are correct. Okay. So by that way, you can write the sentence. Now, up to now, we have defined what are the logical connectives. So in this one, we have used disjunction, conjunction, negation, implication, and biconditional. So these are the 5 logical connectives that we have used till now. और इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई जो नोट करने वाली थी. पहला ये कि ये जो P implies Q है, it is equivalent to negation of P disjunction Q. तो अगर आपको इम्प्लीकेशन को इलिमिनेट करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. इन द सेम वे जो P बाई कंडीशनल Q है, इट इज इक्विवेलेंट टू. तो इक्विवेलेंट के लिए हमने ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं. दैट इज अ साइन फॉर इक्विवेलेंट. तो 2 फॉर्मूला इक्विवेलेंट होते हैं तो उस केस में हम ये यूज कर रहे हैं. तो इट इज इक्विवेलेंट टू P implies Q, conjunction,
Q implies P। और मैंने अभी बताया आपको कि इम्प्लीकेशन को फिर कैसे एलिमिनेट करना है। तो अगर आप इम्प्लीकेशन हटाओ तो बाई कंडीशनल को हम बिना इम्प्लीकेशन और बिना इस बाई कंडीशनल ऑपरेटर के लिख सकते हैं। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, तो मैंने अभी बताया आपको कि P इम्प्लाइज Q की जगह हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ये हो गया। और ऐसे ही Q इम्प्लाइज P की जगह हम लिख सकते हैं, ये तो बीच में कंजंक्शन आ गया, निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P यूजिंग दिस प्रीवियस रिजल्ट। इसको यूज करके तो हमने इम्प्लीकेशन डाल लिया। तो P बाई कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। ओके, so this is the important result in context to this biconditional and conditional statement. Okay, because it will be required for converting any formula into normal form। आगे मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी फॉर्मूला को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यू मस्ट नो P implication Q is equivalent to negation of P disjunction Q, and P biconditional Q is equivalent to P implies Q conjunction Q implies P, and therefore it can further converted as negation of P disjunction Q conjunction negation of Q disjunction P. Okay, yes, any queries up to this point you can ask. Anyone? Any doubts up to this point? So this is about various logical connectives. So these are the 5 connectives that we will use throughout the context of propositional logic. Yes, anyone having any doubts, you can ask. No, sir. Okay, so moving ahead, let me delete this first. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंस। जैसे हम अलजेब्रा में या अर्थमेटिक्स में हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम उसकी प्रेसिडेंस बताते हैं। ऐसे ही हम क्योंकि आगे हमें कंपाउंड फार्मूला यूज करना है, और कंपाउंड फार्मूला में कई सारे कनेक्टिव्स एक ही फार्मूला में आ सकते हैं, तो फिर हमें प्रेसिडेंस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी कि हम कैसे उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंस है ये इस तरीके से है। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो होता है वो निगेशन का होता है, फिर कंजंक्शन और डिसजंक्शन का होता है, और फिर इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन का होता है। तो दिस इज द प्रेसिडेंस रिलेशन दैट वी विल फॉलो whenever we have to simplify any propositional formula। ठीक है, तो निगेशन का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कंजंक्शन और डिसजंक्शन का, और फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल का। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि वेन एवर वी आर राइटिंग निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, इट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म negation of P only, not for the entire. This is due to that this negation has precedence over this conjunction. So that's why it will be simplified as negation of P। पहले आप negation of P करोगे, and then after conjunction Q. It is not written as negation of the entire P conjunction Q. Why so? Because negation has precedence over conjunction. But obvious it is clear that we have to perform this way, not by this way. क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हो, इसका मतलब ये हो गया कि दिस कंजंक्शन हैज प्रेसिडेंस ओवर निगेशन। दैट्स व्हाई वी आर परफॉर्मिंग कंजंक्शन फर्स्ट एंड देन आफ्टर निगेशन। बट दैट इज नॉट ट्रू, सिंस we are saying that negation has precedence over conjunction, so that's why negation has to be simplified first, and then after we have to perform
conjunction. Okay, so this is the example depicting the precedence of connectives. This is one example. Okay, so you have to remember this precedence relation. This negation has the highest precedence after conjunction, after implication and biconditional. Okay, now there is one more optional logical connective that is called exclusive OR, जिसको हम in short XOR भी बोलते हैं. इसके लिए हम प्लस साइन विथ इन ए सर्कल यूज करते हैं. ठीक है, ये सिंबल है इसका XOR का, प्लस साइन विथ इन ए सर्कल. तो दिस इज कॉल्ड exclusive OR of P and Q, and it is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true. ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस बाई कंडीशनल पढ़ा उसमें यह था कि दोनों सेम होंगे तब जो है वो ट्रू होगा, और दोनों डिफरेंट होंगे तो उस केस में वो फॉल्स होगा. लेकिन जो एक्सक्लूसिव और है ये उसी का अपोजिट है. यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि दोनों डिफरेंट होंगे तब ये ट्रू होगा, और दोनों अगर सेम हैं तो वो फॉल्स होगा. ठीक है, तो दिस इज द ट्रूथ वैल्यू. आप देखो पिछली बार हमने क्या लिया था, ये ट्रू और ये ट्रू और ये दोनों फॉल्स. अभी क्या है, ये दोनों फॉल्स हैं और ये दोनों ट्रू हैं. एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू है, और दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है. तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज एक्सक्लूसिव और इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, तो दिस इज वन ऑप्शनल लॉजिकल कनेक्टिव. ठीक है, तो इट इज़ नॉट वेरी यूज फ्रीक्वेंटली, तो हम 5 ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी दिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको भी बता दिया आपको. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज XOR. ये इसका सिंबल है. नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशंस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन प्रॉब्लम. लेट अस से हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर एनी गिवन कंपाउंड प्रोपोजिशन. ठीक है, तो आपको अगर कोई भी प्रोपोजिशन दिया है, कोई भी फॉर्मूला दिया है, कंपाउंड प्रोपोजिशंस को ही हम फॉर्मूला बोल रहे हैं, तो अगर कोई आपको फॉर्मूला दे रखा है तो आप उसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज वी नो द ट्रूथ वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द लॉजिकल कनेक्टिव्स अर्लियर. तो उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन के लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एक चीज आप याद रखो, जब भी हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी फॉर्मूला के लिए, तो उसमें कितने रोज होंगे ये डिपेंड करता है कि उस फॉर्मूला में हमने कितने प्रोपोजिशनल वेरिएबल यूज किए हैं. जैसे कि इस फॉर्मूला में हमने 2 प्रोपोजिशनल वेरिएबल यूज किए हैं, एक P और दूसरा Q. तो दैट्स व्हाई द ट्रूथ टेबल फॉर दिस विल कंसिस्ट ऑफ 4 rows, 2 to power 2, 2 to power n, where n is the number of proposition variables. तो इस फॉर्मूला में 2 वेरिएबल हैं, इसलिए हम 4 रो यूज करेंगे. एंड दिस विल बी द ट्रूथ टेबल फॉर दिस negation ऑफ P कंजंक्शन negation ऑफ Q. तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले P लिख लिया, Q लिख लिया, ये 2 वेरिएबल्स हो गए. अब हमें पहले क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको कि निगेशन का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, तो पहले हमें निगेशन ऑफ P सिंप्लीफाई करना होगा. तो निगेशन ऑफ P का हमने ट्रूथ टेबल लिख लिया. तो ये Q है तो ये निगेशन ऑफ Q हो जाएगा. फिर हमने P और निगेशन ऑफ Q का कंजंक्शन ले लिया, तो ये उसका ट्रूथ टेबल हो गया. और फिर हमने इसका निगेशन कर दिया, तो निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q. तो ये इसका करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल हो जाएगा इस फॉर्मूला के लिए. Yes, anyone having queries up to this point, you can ask. Any one of you having any doubts, you can ask. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें ये 3-4 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. पहला प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा या कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा.
अगर आपको कोई सेंटेंस या फॉर्मूला दिया जा रहा है, सॉरी स्टेटमेंट या पैराग्राफ दिया जा रहा है इंग्लिश में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा फॉर्मूला में। फर्स्ट थिंग ये है। दूसरा कि अगर आपको कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है तो उसका हमें कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखना हो, ये हो सकता है। और तीसरा प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कि अगर कोई आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन दिया है या फॉर्मूला दिया है और उसका हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड these points. Anyone having any queries till now, you can ask. Yes, tell me. Okay, so moving ahead, let me take one more example. Now, all of you construct the truth table and send me the answer. Answer means only the value of last column. ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिए। Construct the truth table for this formula. P disjunction negation of Q and then implication P conjunction Q. Everyone find out the truth table for this formula and send me your answers in the chat. And anyone getting any difficulty, you can ask. Try to do this, because you don't do, then nothing you will get, because it is mathematics, not a theory subject. So you have to do it by yourself. If you are finding any difficulty, let me know. मैंने आपको निगेशन का ट्रूथ टेबल बताया था, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल बताया था, कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल बताया था, इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल बताया था। उसको यूज करके इस फॉर्मूला के लिए आप ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करिए एंड टेल मी द आंसर। So I think you are not interested. So moving ahead, this is the truth सॉल्व कर table. रहे हैं। Yes, this is the truth table, and that is for P disjunction negation of Q implies P conjunction Q. So this सर is the पीस way. कंजंक्शन क्यों निकाला था, दूसरा वाला निकाल रहे थे। Okay, this is the way to find out, or this is the way to construct the truth table. सबसे पहले तो आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं।
तो इस फॉर्मूला में हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, पी और क्यू। तो पी और क्यू के करस्पॉन्डिंग हमने पहले ट्रूथ वैल्यूज लिख ली, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम हमारा होता है कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमें निगेशन ऑफ क्यू लेना पड़ेगा, तो निगेशन ऑफ क्यू लिख लिया। फिर हमने पी और निगेशन ऑफ क्यू का डिसजंक्शन लिख लिया, तो ये आ गया। और फिर हमने पी और क्यू का कंजंक्शन लिख लिया, ये आ गया। और फिर हमने इसका इसके साथ इम्प्लीकेशन ले लिया। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो ये क्यू की वैल्यू है, तो निगेशन ऑफ क्यू ये हो जाएगा। यहाँ देखो ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी और निगेशन ऑफ क्यू का डिसजंक्शन लेना है। तो ये आपका पी का सॉरी पी का कॉलम है और ये आपका निगेशन ऑफ क्यू का कॉलम है। इन दोनों का हमें डिसजंक्शन करना है। तो यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो ट्रू हो जाएगा। डिसजंक्शन में मैंने बताया था आपको कि दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, बाकी सभी केसेस में ट्रू होता है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू 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 हो गया, और फॉल्स और यहाँ भी फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स और ये ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम P और Q का कंजंक्शन लिख लेते हैं। तो ये आपका ये जो है P हो गया, ये Q हो गया, दोनों का कंजंक्शन लिख लिया। कंजंक्शन मैंने आपको बताया था, जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, बाकी सभी केसेस में फॉल्स होता है। तो ट्रू ट्रू, ये ट्रू हो गया, और ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये तीनों ही फॉल्स हो गया। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसका इसके साथ इम्प्लीकेशन लेना है। तो दिस इम्प्लाइज दिस वन। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन में मैंने बताया था कि फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है, और बाकी सभी केसेस में इम्प्लीकेशन क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो उसी ट्रूथ वैल्यूज को ये ट्रू है, ट्रू हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया, और ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया। क्योंकि इम्प्लीकेशन में ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स होता है, बाकी सभी ट्रू होते हैं। तो ये ट्रू इंप्लाइज, ये ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया, और ये दोनों ट्रू हो गए। ओके, so by this way, you can construct the truth table for any given proposition or formula. Yes, anyone having any doubts in this, you can ask. So moving ahead. So after this, we will discuss about how to translate English sentences into expressions. Okay? तो इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस यानी किसी भी पैराग्राफ को हम फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो बिफोर क्लोजिंग दिस, आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम. लेट अस से दिस वन, negation of P, implication Q, conjunction Q, biconditional P, conjunction find out the truth table for this formula. This is conjunction.
Yes, do this and tell me what is the answer. For this one, negation of P implies Q, conjunction Q biconditional P, conjunction negation of P, disjunction Q. तो अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स लिए उसमें हमने दो ही वेरिएबल लिए हैं। हम 3 वेरिएबल भी ले सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकता है। तो ओके, तो जितने वेरिएबल होंगे 2 टू पावर n नंबर ऑफ रोज होंगे आपके टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो आपको 4 रो यूज करना पड़ेगा। दैट इज ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। नाउ कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल and tell me what is the answer. So columns we have to use is, first of all, P, then Q, then after, let us say, negation of P, then after we have to take negation of P implies Q, then after we can take Q by implication या by conditional P, then after we can take negation of P disjunction Q. तो negation of P already हम find out कर चुके हैं, तो that's why we can take negation of P disjunction Q. ओके, एंड मान लो हमने इसको x मान लिया, फॉर्मूला x, लेट दिस इज x, तो यहाँ पे हमने x लिख लिया, या फिर आप पूरा ये लिखो, ठीक है, तो एक ही मतलब है उसका। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, इन तीनों का कंजंक्शन, तो आप यहाँ पे लिख लेना, या फिर मैंने यहाँ पे शॉर्टकट के लिए x लिख लिया। वी हैव मेंशन दैट दिस इज x। ओके, तो जैसा मैंने बताया, हम 4 रो यूज करेंगे क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, p और q। तो ये 4 रो हो जाएंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स। तो ये 4 रो हो जाएंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज लिख ली। पहले हम निगेशन ऑफ p लिखते हैं, तो p की वैल्यू ये है, तो निगेशन ऑफ p हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स, और ये ट्रू, और ये ट्रू, क्योंकि p जो है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, तो निगेशन ऑफ p फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया। अब हमें लेना है निगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q, तो ये निगेशन ऑफ p है और ये q है, इन दोनों का इम्प्लीकेशन लेना है। आप ये देखो, पहले हमें ये लेना है, फिर हमें ये लेना है, तो डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर द ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसके साथ इम्प्लीकेशन लेना है, तो ये फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू।
फॉल्स फॉल्स, क्या होगा? ट्रू। फिर है ट्रू ट्रू, क्या हो जाएगा? ट्रू। और फिर है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स। फिर हमें Q बाई कंडीशनल P लिखना है, यानी P और Q का बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल मैंने बताया कि दोनों सेम है तो ट्रू होगा और दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स होगा। तो देखो ट्रू 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 हो जाएगा। P बाई कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू P बाई कंडीशनल Q। ठीक है, तो आप दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों की ट्रुथ वैल्यूज में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम या तो ये देख रहे हैं कि दोनों सेम है या फिर दोनों डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स हो गया, फिर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू हो जाएगा। अब हमें लेना है निगेशन ऑफ पी, ये और ये, इन दोनों का डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन केवल एक केस में फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हो। तो ट्रू फॉल्स यहाँ हो गया ट्रू। फिर फॉल्स फॉल्स, तो ये हो गया फॉल्स। फिर ट्रू ट्रू, तो ये हो गया ट्रू। और ट्रू फॉल्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू। Let me erase this. तो ये था निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, यानी कि ट्रू फॉल्स, तो ये हो गया ट्रू। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम का, इस कॉलम का और इस कॉलम का, तीनों का हमें कंजंक्शन लेना है। और कंजंक्शन में मैंने आपको बताया था तीनों ट्रू हैं, मतलब सभी ट्रू हैं तो ट्रू होगा, और बाकी सभी केसेस में फॉल्स होगा। तो देखो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसलिए रिजल्ट इसका ट्रू हो गया। और ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ये भी फॉल्स हो गया। और फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो दिस इज द आंसर, you will get true, false, false, false. So this is the truth value for this formula. I hope you have done that. Okay. Yes. So by this way, you can find out the truth table for any given formula. Okay. Yes. Anyone having any queries? सर Anurag. Yes, you can speak. सर इसमें ऑर्डर से भी फर्क पड़ता है क्या? जैसे मेरे आंसर आया है फॉल्स एक फॉल्स ट्रू आया है क्या? सर, नहीं, इसमें ऑर्डर। ऑर्डर से मैं फर्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किसके लिए बात कर रहे हो। जब P और Q ट्रू होगा तो ये इसका रिजल्ट ट्रू होगा। जब P और Q ट्रू फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। ये ऑर्डर नहीं है कोई। दिस इज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ वैल्यूज। अगर आप इसको फॉल्स फॉल्स पहले लिखते हो तो ये ऊपर चला जाएगा। यस ठीक है, सर। तो उससे मैटर नहीं करता। हम जो चेक करेंगे वो इसके बेसिस पे करेंगे कि P ट्रू है, Q ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है। P ट्रू है, Q फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। P ट्रू फॉल्स है, Q ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स है। और P फॉल्स है, Q फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। ये इस पे डिपेंडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये रिजल्ट चेक करना है। ये ऑर्डर नहीं है कोई। ओके सर। ओके। यस सर। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? सो बाय दिस वे यू कैन, मैंने ये एग्जांपल लिया जिसमें हमने दो ही वेरिएबल यूज किए हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम दे के जा रहा हूँ जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आप इसको करना एंड यू कैन सेंड मी योर आंसर्स। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट दिस हाउ टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एनी गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप नोट कर लो। P डिसजंक्शन negation of Q disjunction R
implies negation of P conjunction R. Okay. Obtain the truth table for this formula. So you will try for that, and you can send me your answers on my WhatsApp, on the group. Okay. And in next class, we will start with the next topic. So anyone having any queries, you can ask. Otherwise, we can stop here. So you must remember the truth table for different logical connectives. ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है किसी भी गिवन फॉर्मूला के लिए ट्रूथ टेबल ऑब्टेन कर सकते हो. Okay, so we will meet again in the next class. Have a nice day. Thank you all.